Hello students, how are you? Welcome back to the class of chemistry. As per the discussion, we will start today lecture number 2 of the metallurgy. And in ICSE, a lot of questions come from this topic, that is metallurgy of aluminium. In lecture number 1, we have already discussed about the ores of aluminium. We have discussed about the concentration of the ore. So here again I'll start with a bit of revision what we have done. Step number 1. Step number 1 is concentration of the ore. So in the concentration of the ore we do pulverization. First of all we do the pulverization. Pulverization is a very simple process in which we do the grinding of the ore, and then after pulverization we use NaOH, and we use NaOH, and this process is known as Beer's process. Alright, this was the first step. This I have already discussed in lecture number 1. You can see in the previous video. So over here again I'll talk about step number 2. Step number 2 is conversion of ore to oxide. So this is a process in metallurgy that whatever ore you have used, you convert that ore into oxide. This is not required in the metallurgy of aluminium, as this is not required, as we have already this is not required as we use bauxite. Bauxite ore is already Al2O3 dot 2H2O, or like even if we use alumina, this ore that is already an oxide, so conversion of ore to oxide is not required. Now we'll go to the next one here. Step number 3. Now the step number 3, a very important step, and in this step we will do all the problems. In this lecture we will only be discussing the step number 3. Step number 3 is reduction of this oxide to metal. So here we are going to discuss a process by which we are going to convert this Al2O3 to pure metal. So our desire is to convert Al2O3 to aluminium, and for this, children, we use a method that is the electrolytic reduction. And this electrolytic reduction method for aluminium was suggested by Hall and Hérault. So it is known as Hall and Hérault process. One question of 5 marks is almost there every year in ICSE, so we need to take this a bit seriously, but then this is very easy. The diagram, they will give the diagram and then they will ask many questions. So this is what we are going to discuss in this lecture, the electrolytic reduction of aluminium. So to begin with, for electrolysis, let us understand a bit of the electrolytic process. Electrolysis is the passage of electric current through a compound, but Al2O3 is a solid. Solid Al2O3 will not pass current, so we need to melt this to get aluminium 3+ and the oxide ions. We need to get these free ions. Free ions means they can move around in the liquid, so we need to melt this. But the biggest problem is that this aluminium oxide has got a very high melting point, and the melting point or the fusion temperature
the fusion temperature is more than 2000 degree centigrade. Now this is very very high. So Hall and Heroult have suggested a method for this. So they say you take the electrolyte mixture. Now they have suggested that you take the electrolyte mixture, and this electrolyte mixture, they say you take Al2O3 plus Na3AlF6 plus CaF2. Now when you take this mixture, there are a few benefits. Number one, this fusion temperature comes down to 950 degree C. So when it comes down to 950 degree C, it is a great benefit for us. And then there is one more benefit out of this. As this is a mixture which is containing a lot of ions, and you see ions can move more freely. अब इसको अगर हिंदी में समझते हैं तो ये वाला जो सोल्यूशन है, ये वाला Al2O3 को जब मेल्ट करते हैं तो ये बड़ा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, थिक होता है. इसमें शायद मूवमेंट ऑफ आयंस की दिक्कत होती है. यहाँ पर देखो, ये जब ऐसा मिक्सचर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर, एक तो फ्यूजन टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 2000 से घट के हो जाता है 950 डिग्री सी, और आयंस कैन मूव वेरी वेरी फ्रीली. अब यहाँ पर कभी कभी ऐसे रीज़न भी पूछ लेते हैं और इनका नाम भी पूछ लेते हैं. Na3AlF6 is known as cryolite and CaF2 is known as फ्लोरस्पार. ये इनके कॉमन नेम हैं और ये वो 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछते रहते हैं. और बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस द फ्यूजन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज आयोनिक मोबिलिटी. आयंस कैन मूव मोर फ्रीली. चलो अच्छा, देखते हैं इसका प्रोसेस. और अब हमने क्या करना है, व्हेन वी सी द प्रोसेस, तो हम लोग क्या कर रहे, लेट अस टेक अ बिग कंटेनर. ऐसा डायग्राम वहाँ पर बना रहता है एग्ज़ाम में, एंड देन दे विल आस्क यू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डायग्राम. दे विल लेबल दिस डायग्राम एंड दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो दे हैव टेकन अ कंटेनर, एंड इन दिस कंटेनर they have applied a layer of, in this container they have applied a layer of graphite. And we all know graphite is a very good conductor of electricity, and they will join this. Later on they want to join some wire through this, so they have done the inner lining. So this is the container, and in the inner lining they have applied graphite. So graphite is made up of carbon here. Then in this I'll make of yellow so that it is easier. This is our electrolyte mixture, and the electrolyte mixture is made up of, we have just discussed that the electrolyte mixture, this is our electrolyte mixture shown with yellow color. They have filled this with electrolyte mixture and we need to label this. Okay, fine. This is a mixture of Al2O3 plus Na3AlF6 plus CaF2. Now what they do, they join this graphite and make it the cathode. Cathode is minus. They connect with the minus terminal of the battery. Then children, what is there? Okay. They have added a lot of
anodes here, many pieces of carbon. Of course, carbon is graphite here, and they are connecting this with the positive terminal of the battery. Alright, let us discuss each of these things. And over here they sprinkle and cover this top layer with carbon powder. Okay, this is the carbon powder. This is the electrolytic cell. This is the electrolytic cell devised by the Hall-Héroult process, devised for the Hall-Héroult process. Now what happens, children, when all this is in the molten condition, Al2O3 will dissociate to give aluminium ion plus the oxide ion. Let us quickly balance all these things. Na3AlF6 will dissociate to give 3 sodium and 1 of aluminium and 6 of F minus. Then this CaF2 will give you Ca2 plus and F minus. So a lot of ions, and the molten temperature, the fusion temperature or the melting point is 950 degrees C, and because of all this, ions can move easily. Now let's understand this. ये तो बड़ा सुंदर बन गया, मतलब हटाने का मन नहीं कर रहा है. हाँ, तो अब देखो इसमें कैथोड कहाँ पर है और एनोड कहाँ पर है. ये है हमारा कैथोड और ये देखो सुंदर सा हमारा है एनोड. दिस अ ब्यूटीफुल एनोड हियर. और एनोड हमने बहुत ज़्यादा ले रखे हैं और इसका रीज़न है, अभी देखो एक एक सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं. तो पहला तो ये डायग्राम आ गया, ऐसे लेबलिंग करना पड़ सकता है. इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर क्यों है और इसका बेनिफिट क्या है. इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर में क्या क्या है. Na3AlF6 को कहते हैं क्रायोलाइट. CaF2 को क्या कहते हैं. CaF2 ही है फ्लोर स्पार. आ जाओ जल्दी से, कुछ आगे बढ़ें. हटाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन हटा देते हैं. अच्छा, आप देखो डायग्राम यहाँ से देख लिया तुमने, किताब खोल ली होगी, नहीं तो एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट वॉट ले लो, नहीं तो फिर नीचे इसको हम बताएं कि क्या होता है. अच्छा, आ जाओ अब जल्दी से देखा जाए कि एनोड पर क्या होगा. एनोड हमारा होता है प्लस चार्ज का. यहाँ पर क्या आएंगे, कलेक्शन ऑफ एनायंस होगा. कौन कौन से एनायंस यहाँ पर आने वाले हैं, जितने भी निगेटिव वाले हैं सब यहीं आ जाएंगे. F माइनस आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास O-2. देखो ऊपर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पर देखो इन रिएक्शंस में हमें कौन कौन से एनायंस मिल रहे. तो हमें मिला है यही, ये O और यहाँ से ये F और यहाँ से ये F, ये सब कलेक्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे. अब देखो यहाँ पर तुम लोगों को एक हमें लिस्ट देनी पड़ेगी कि मोस्ट लेस रिएक्टिव कौन सा होता है. तो तुम लोग जानते होगे कि यहाँ पर एक लिस्ट याद रखो. आउट ऑफ दीज टू ऑक्सीजन इज लेस रिएक्टिव. आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ऑक्साइड इज लेस रिएक्टिव. तो इसी का पहले खेल होगा. ये माइनस करेगा, चलो इसको बैलेंस कर लें, 2 ले लेते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके O2 बना लेगा. देखो यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसा याद करने के लिए लियो बना दिया है. तो यहाँ पर देखो कि कलेक्शन आएगा, कलेक्शन ऑफ एनायंस, और फिर ये क्या है, डिस्चार्ज ऑफ आयंस, इसे कहते हैं डिस्चार्ज. और ये डिस्चार्ज भी ऐसा नहीं कि मनमर्जी हो, इसके कुछ रूल्स हैं. जो लेस एक्टिव है वो पहले होगा, जब ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका भी डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा. एनोड देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा. अब देखो कि यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन गैस निकल रही है और टेम्परेचर कितना है, 950 है. द टेम्परेचर इज़ 950. अरे दादा
इतना ज़्यादा टेम्परेचर और ऑक्सीजन गैस हाईली रिएक्टिव, इसीलिए हमने क्या किया है, बहुत सारे एनोड लगा रखे हैं। वी हैव एडेड मैनी एनोड्स। और एनोड जो है बेटा हमारा कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट में कार्बन ही होता है। इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाएगा। C+O2 जो ये O2 बनी है वो तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई पड़ेगा, वी विल गेट वन ऑब्जर्वेशन, एनोड is burned or converted to CO2। देखो इसे बेनिफिट है, एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बर्न करता है, फटाफट ये CO2 में निकल गया, तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एनोड लेते हैं और वॉच करते रहते हैं कि एनोड अगर कहीं ख़त्म हो गए तो हम दूसरे एनोड लगा लेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट है, देखो एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ होंगे कलेक्शन ऑफ एनायंस, क्योंकि एनायंस होते हैं माइनस चार्ज के, तो अपने आप खींचे चले आएंगे। और जब ये खींचे चले आ रहे हैं तो यहाँ पर एनोड है प्लस, इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए और ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, कार्बन वहाँ मौजूद है, दोस्ती हो गई। आ जाओ जल्दी से देखा जाए कि अब रिएक्शन एट द कैथोड क्या होगा। ये थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जल्दी से आ जाओ। कैथोड भी हमारा था, कैथोड इज़ निगेटिवली चार्ज्ड, यहाँ पर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कैटायंस होंगे, सारे के सारे कैटायंस आ जाएंगे। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, देखो ऊपर कैल्शियम था, और यहाँ पर सोडियम आ जाएगा। इसका भी रूल है, इसमें से देखो एक्टिविटी सीरीज़ में नीचे कौन सा होता है, एल्यूमिनियम इज़, इन तीनों में सबसे नीचे एल्यूमिनियम है, तो बस एल्यूमिनियम को ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे कैथोड से और प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हमें मिल जाएगा डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना या Al2O3, जो हमने ऊपर से कंसंट्रेट कर लिया था, साफ़ सफाई उसकी कर ली थी। तो यहाँ पर हमसे बेटा इसका डायग्राम बना रहेगा और डायग्राम बनाने के बाद वो लेबलिंग करवाएंगे, रिएक्शन एट द एनोड और कैथोड कहेंगे। तो यहाँ पर इतनी बात हमने तय कर ली। दैट्स ऑल इन लेक्चर नंबर 2। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। और आजकल खूब पढ़ाई करो और साथ में ना थोड़ा गाजर आजर खाया करो। गाजर खाने से क्या होता है, थोड़ी बुद्धि बढ़ती है। और आजकल क्या है ना कि माउस बहुत खेल रहे हैं, तो देखो इस पे ख़त्म करते हैं ना। ये डायग्राम में बड़ा सुंदर लग रहा है, हमें लग ही नहीं रहा कि हमने बनाया है। पर चलो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। जल्दी जल्दी पढ़ो और कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट मेरे से पूछो।